Ladies and gentlemen, for 47 years, the truth is yet to be out. The Sambal truth continues to be the biggest concern. Back in 1978, arson, stone pelting, all of that took place. Innocent people's houses were burned. Hours after Chief Minister Yogi Adityanath's explosive interview with Arnab Goswami, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken a bold action on Sambal, calling the 1978 riots a cancer that needs surgery. And during that agenda-setting interview, Yogi Adityanath has essentially indicated about what really happened back in 1978, demanding a detailed report within a week. Now, as senior officials dig into the truth, the investigation has left the entire lobby completely rattled. Why is there so much discomfort over uncovering the fact? What does the Sambal's history essentially reveal? And why is this is becoming the nation's top agenda? Let me tell you, back in 1978, on 29th of March, when an incident actually took place in Sambal, which then happened to be in the Muradabad district in Uttar Pradesh. Thereafter, many houses were burnt. Innocents had to flee from their house. And mostly Hindus had to leave their house. Thereafter, over 160 cases were basically registered. And surprisingly, till date, no one really knows how it all started. Who exactly was really responsible? In fact, we take you through a detailed report as to what really happened and what next. In the most headline-setting interview with Republic Editor-in-Chief Arnab Goswami, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath took the clearest yet position on the Sambal issue. तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाणों की चर्चा होती है तो क्या इस पे चर्चा करेंगे? नहीं कर सकते। योगी जी, एक अनुमति दें। हाँ, ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से कुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। And hours later, the Uttar Pradesh government has initiated a fresh probe into the 1978 Sambal riots. Chief Minister Yogi Adityanath gave a fiery speech in the Uttar Pradesh Assembly. 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। Senior officials have been tasked with revisiting historical records to uncover new insights into the riots which caused widespread unrest in the region. This is a picture of late Banwari Lal Goyal. Goyal was allegedly burnt alive during the deadly riots. This is the same man whose hands were chopped off. Republic spoke to Nitish Garg, whose family member was allegedly burnt alive during the 1978 riots. हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे
हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। The 1978 Sambhal issue remains a sensitive chapter in Uttar Pradesh's history, and this renewed investigation has invited mixed reactions from across the spectrum. लगभग 7 लाख से के इर्द गिर्द जो है वो मस्जिदें और इबादत गाहें मुस्लिम समाज की हैं भारत में, और कुछ ऐसी हैं जो कि विवादों के घेरे में हैं और जिसके बारे में कि तमाम तरह के जो है वो तर्क और तथ्य सामने आ रहे हैं, उसका समाधान जरूरी है। देखो, हमने मस्जिद तोड़ के हमारा मंदिर बनाओ ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। हमको किसी के धर्म से ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम किसी के मंदिर तोड़ के अगर अपना कुछ बनाना चाहते तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। हम बार बार ये कहते हैं, वो जो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आए थे या तो बाकी लोग जो आए थे जिन्होंने यहाँ सत्ता की है, उन्होंने ये सब चीजें किए, और अब वो लोग चाहते हैं कि हमारी जो उनके धर्म के प्रति आस्था है, वो आस्था को कोई हलाया नहीं जाए। Some seem unnerved by Yogi's efforts to discover the truth behind the 1978 riots. योगी आदित्यनाथ से मैं विनती करता हूँ, मुख्यमंत्री है वो, कि अयोध्या की जो खुदाई हुई, उस अयोध्या की खुदाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की है। उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खुदाई का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करे। दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। संभल का इस्लामाइजेशन, अगर ये हिस्ट्री को सही पढ़ लेते तो इनको शायद जानकारी होती। संभल की जो जामा मस्जिद है वो इतनी पुरानी जामा मस्जिद है, उसकी एक हिस्ट्री है, पूरी तारीख है उसकी, शायद योगी जी ने पढ़ा नहीं है। दिक्कत ये है कि संवैधानिक पद पर बैठकर जब इस तरह के भाषण लोग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। As the Uttar Pradesh government takes a strong step to discover the Sambhal truth, the question remains, why is the lobby rattled by a simple investigation? Now, one of the many casualties in the Sambhal riots of 1978 was a businessman, Banwari Lal Goel, a businessman whose hands were chopped off, a businessman who was burnt alive. Now, we believe that Uttar Pradesh Chief Minister, whom thereafter made a reference of the same very businessman in this explosive interview with Arnab Goswami, was talking about this very businessman and the fact that he is just one of the many who was regarded as the brothers even for the Muslims. And his hands were basically chopped off, all because he was helping those in the village during the riots, where 24 Hindus were basically burnt alive back in 1978. In fact, in a short while from now, Banwari Lal's son would be joining us on this broadcast. But first, listen in to the reference that was made by UP Chief Minister Yogi Adityanath in that interview. संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई, और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। For the first time, Vineet Goel, Banwari Lal's son, is joining us on this broadcast, and he speaks on the riots. In fact, a short while back, speaking to a local news network, he's largely referred to the fact that there hasn't been any closure. विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। योगी आदित्यनाथ आपके पिताजी के बारे में जिक्र करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि आज तक सच्चाई निकल कर नहीं आ रही है। आज पहली बार जब योगी आदित्यनाथ ये इंटरव्यू के बाद कहते हैं कि सच्चाई आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग हैं यूपी में आज भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं।
सच्चाई ये कि उस समय दंगाइयों ने हमारे अहाते में पूरी तरह से उसका आक्रमण कर दिया। मेरे पिता के साथ साथ उसमें 24 लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। हत्या भी इस तरह से की गई कि उनके पहले हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिए गए, यहाँ तक कि बाद में गला काट दिया। और उन्होंने शुरू में उनसे अनुरोध की भी बहुत विनती करी कि भाई मुझे गोली मार दो, मेरी इस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या मत करो, लेकिन वो बिल्कुल उन्मादी थे। और उन्होंने बाद में उनको टायरों पे रखकर मिट्टी का तेल वगैरह डालकर इस तरह से शव को छत विछत कर दिया कि कोई भी न शव पहचाना जा सका, न किसी प्रकार से किसी की मतलब हड्डियां तक नहीं मिल पाई मृतकों की। विनीत जी विनीत जी, क्या आप मानते हैं कि एक तरह से ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि आज भी ये कहा जा रहा है कि कई सारे फाइल्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, दंगे को लेकर, जिसे छुपा दिया गया है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं, इस पे क्लोजर हो चुका था। इस पर ये सही है, लेकिन उनका इतना प्रेशर एक समुदाय का था कि जो लोग उसको लड़ना भी चाहते थे उस केस को, वो आगे उसमें गवाही और अन्य चीजों के लिए नहीं गए। दुर्भाग्य ये रहा कि जो ओम प्रकाश गर्ग एडवोकेट थे, मेरे बड़े भाई थे, वो केस को लड़ रहे थे और बड़ी निर्भीकता से लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका भी किस तरह की दबाव की बात कर रहे हैं विनीत जी? आप किस तरह की दबाव की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जब इस पूरे सुनवाई हो रही थी, इसको लेकर क्या कोई राजनीतिक दल इसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे? राजनीतिक दल तो उस समय इतने ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहा था, लेकिन एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय बहुत प्रेशर कर रहा था। और जो उस समय तत्कालीन वहां पर डीएम थे फरत अली, उनका रोल बहुत ज्यादा खराब रहा। उन्होंने किसी भी तरह दंगे को शांत करने की कोशिश नहीं की और उस दंगे को आगे ही बढ़ाया, जिससे कि एक संप्रदाय को और छूट मिल गई और इतना बड़ा कांड हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ तथ्य अब तक निकल कर नहीं आया। आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पहली बार नेशनल टेलीविजन पर बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आप बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे क्या चीज है जो आज देश नहीं जानता संभल के बारे में, और उस समय दंगे के समय जो हुआ उसे छुपाने की बात किया जा रहा था? शासन द्वारा भी और शासन द्वारा भी समय समय पर उसको दबाने की कोशिश की गई और तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, तो मुझे भी एक आशा की किरण जगने लगी है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पिता को भी अब न्याय मिलेगा। विनीत जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। As we've been also pointing out that was there some sort of a political pressure? In fact, on the floor of the assembly, Uttar Pradesh Chief Minister spoke about the fact that the truth was hidden.